Good afternoon. My voice is audible? Hello? Hello? My voice is audible? Your internet connection is weak. Hello? My voice is audible? Yes, sir. Okay. Today I am giving you a demo of synchronization of three-phase alternator or three-phase synchronous generator, right? So just come here. Just you can see we have here we have two motors. Here we have two motors. One is DC motor and one is synchronous generator. So you can say this is synchronous generator and backside. And then you need a one prime mover. Prime mover for rotating a generator. For prime mover we are using a DC generator. This is DC generator. This is DC generator and this is synchronous. Sorry, this is DC motor and this is three-phase synchronous generator. Right? So, if you start this motor, DC motor, by mechanical power input to this three-phase synchronous generator, this three-phase synchronous generator will generate a three-phase power or three-phase voltage. तो वो हम step by step देखेंगे. तो main part of your experiment is one synchronous generator, and in right-hand side, on that side, one more synchronous generator is kept. Two synchronous generator, two motor is required. समझ रहे हैं ना? For mechanical input we are using DC motor and that DC motor is used as a prime mover to rotate this three-phase synchronous generator. Right? Anybody having any doubt, any confusion, just ask. Don't be quiet. अब आपको क्या करना है? What you want to do? We have to give first mechanical input to a three-phase synchronous generator. अब क्या करेंगे? DC supply on करेंगे. DC मोटर को ऑन करेंगे. जैसे ही DC मोटर ऑन होगा, this synchronous generator is started. Similarly, we can start second setup. One more setup is there. DC motor is there. Synchronous generator is there. Two synchronous generator is started randomly. ठीक है? After starting two synchronous generator, जब दो synchronous generator start हो जाएंगे, then we will measure the voltage of first synchronous. We will verify the three conditions. Voltage of two generators are same. Second, phase sequence is same. Third, frequency is same. If these three conditions are matched, then directly we can connect two alternators in parallel. So our main purpose of this experiment is to synchronization of three-phase alternator using two methods. One is synchronoscope method, one is dark lab. ठीक है? And two bright and one dark lab method. हम दोनों methods से इसको synchronize करेंगे. So just I am giving you a demo. I will start the DC motor first and we'll check. देखिए हम DC motor को start करते हैं पहले. DC motor से synchronous generator चलेगा and once synchronous generator is started. synchronous generator start होगा तो आप देख सकते हैं. You can view the picture. ये देखिए ये आपका नीचे रखा हुआ है दो मोटर जनरेटर से. This is DC motor and this is generator. अब आप इसके पैनल के पास आ जाओ. तो DC मोटर में अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो देखा होगा कि यहाँ पे हमारा DC सप्लाई आ रहा है. DC सप्लाई से दिस इज स्टार्टर हम ऑन करेंगे तो वो मोटर ऑन हो जाएगा. ठीक है? फिर DC मोटर अगर रोटेट करेगा तो ये अल्टरनेटर के थ्री टर्मिनल से यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस होगा. समझ रहे हो ना? When you rotate synchronous generator with DC motor, the three-phase power is induced in this alternator. Alternator में हम DC सप्लाई दे रहे हैं. देखो F and F' टर्मिनल ये अल्टरनेटर का फील्ड वाइंडिंग है, रोटर, उसमें हम DC सप्लाई दे रहे हैं. नेक्स्ट कम हियर टू सेकंड सेटअप. ये आपका नीचे हो जाए, थोड़ा नीचे. दिस इज योर सिंक्रोनाइजेशन पैनल.
दिस इज योर सिंक्रोनाइजेशन पैनल. सिंक्रोनाइजेशन पैनल में from first day I am explaining you 3 conditions should be matched for synchronization of alternator. First, voltage should be same. One generator this side, one generator this side. Both the side generator voltage V1 V2 will be same. अगर V1 V2 same है, अपनी first condition for synchronization is match. Second condition, frequency should be same. HZ1 HZ2 दोनों की frequency match होना चाहिए, frequency indicator है. Third, फेज सीक्वेंस शुड बी सेम. तो फेज सीक्वेंस को मैच करने के लिए आई टोल्ड यू टू मेनी टाइम्स कि आपके पास लैंप मेथड है और एक सिंक्रोनोस्कोप मशीन है हमारे पास. सिंक्रोनोस्कोप इसमें ऑलरेडी है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, तो उससे भी मैच होता है. जब ये तीनों कंडीशन मैच हो जाएगी, व्हेन ऑल द 3 कंडीशन आर मैच, वोल्टेज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, फेज सीक्वेंस सेम, वी कैन स्टार्ट द सिंक्रोनाइजेशन स्विच. ये सिंक्रोनाइजेशन स्विच है, दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो अब ये बस मैं आपको डेमो दे रहा हूँ. मोटर स्टार्ट होगी, आपको आवाज आएगी, यू कैन सी जस्ट. ओके, आई एम स्टार्टिंग द मोटर. ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट करो. तो देखो स्टार्ट करो. हाउ टू स्टार्ट द मोटर? फर्स्ट वी हैव टू गिव अ डीसी सप्लाई. डीसी सप्लाई देना पड़ेगा आपको. 160 में करो. जैसे डीसी सप्लाई देंगे आप, तो आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी. देखो, योर मोटर इज स्टार्टेड. आपका मोटर स्टार्ट हो गया है. ठीक है, स्क्रीन बढ़ गया. देखो, दिस इज योर पैनल. तो मोटर साइड में स्टार्ट हो गई है. यू आर गेटिंग ए साउंड दैट मोटर इज स्टार्टेड. ठीक है, मोटर स्टार्ट होने के बाद, मोटर जैसे ही स्टार्ट हो गई आपकी, मोटर इज स्टार्टेड. ठीक है, तो जैसे ही मोटर आपकी स्टार्ट हुई, तो सिंक्रोनस जनरेटर में हमने एसी एक्साइटेशन दिया है, तो सिंक्रोनस जनरेटर विल इंड्यूस द ईएमएफ. ठीक है, अगर आप पास ले जाओगे तो आपको मोटर की स्पीड दिखेगी. दिख रही है स्पीड? देखो, दिस इज ए स्पीड इंडिकेटर 1381. ठीक है, 1382. तो इतनी स्पीड से आपकी मोटर चल रही है. तो इसकी स्पीड मैं चेंज कर सकता हूँ. आप लैपटॉप पकड़ो. मैं इसकी स्पीड चेंज करके मैं 1500 आरपीएम में सेट कर रहा हूँ. वाई 1500 आरपीएम? 4 पोल मशीन है, 1500 आरपीएम में रन होगी तो मुझे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी. तो आई एम सेटिंग दिस एट 50 हर्ट्ज. देखो, ऑलमोस्ट 1500 आरपीएम में एक मोटर आपका शुरू हो गया. ठीक है, वैसे हमें we have to start second motor and second generator, and we have to run second motor generator set at also at 1500 rpm. ठीक है, इसमें अगर आप वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज दिखा रहा है कितना, तो अप्रोक्सीमेटली 300 वोल्ट. तो वहां दिखाइए, देखो, वन जनरेटर इज रनिंग एट 300 वोल्ट. वन जनरेटर का जो वोल्टेज है डेट इज 300 वोल्ट. सेकेंड जनरेटर इज ऑफ. देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज आ गया. You can see that the frequency showing is 50 hertz because I am running synchronous generator at 1500 rpm. Therefore, it is generating at 50 hertz. ठीक है, this is frequency meter. ठीक है, अब now I can start the motor generator set 2. हम motor generator set 2 को start करेंगे. तो motor generator set 2 इधर पे है. आप start करो. You can start the motor generator set. Now we have to start motor generator set 2 and run this motor generator set again at 1500 rpm. 1500 rpm में ही रन करेंगे. देखो, you have to run this motor generator set. This is your motor generator set. This is second motor generator set. Second motor generator set. This also we have to run at 1500 rpm.
this motor is also running at 1500 rpm. And the voltage is set at 300 volt. Here you can see that both the motor and both the generators, generator 1 and generator 2 are having a voltage. इसका 300 से कम है, इसका 300 से थोड़ा सा ज्यादा है. तो कम करो. We have to verify 3 conditions. First condition, voltage should be same. देखो voltage same हो गया, 300 volt, 300 volt. Second condition, 50 hertz. 50 hertz. ये करीब 49 दिखा रहा है, तो इसको 50 हर्ट्ज करना पड़ेगा. कैसे होगा? बस हो गया. You can check both the voltages are 300 300. ये देखो ये 300 से ज्यादा हो गया, तो वोल्टेज को कम करना. ठीक है. First condition, voltage should be matching 300 volt. Second condition, frequency 50 hertz, 50 hertz. Third condition, phase sequence. तो phase sequence match करने के लिए देखो, this is your synchronoscope. ये synchronoscope ऑन कर दिया है. phase sequence जिस instant में match होगा, उस instant में ये हमें क्या करना पड़ेगा? What we have to do? We have to go for synchronization switch on करेंगे. ये देखो ये synchronization switch है, आप दिख रहा है क्या? This is synchronization switch. ये synchronization switch हमें तब ऑन करना है जब phase sequence मैच करेगा. तो देखो phase sequence मैच ये यहाँ पे करेगा, इस पॉइंट. ये दिख रहा नहीं? You can say this when it is coming here. देखो red light will be off. Red light off means phase sequence मैच हो गया. मैच हो गया means मैंने synchronize कर दिया. देखो अब synchronize हो गया. Both the generators are connected in parallel. देखो frequency मैच हो गई. ये देखो ये रुक गया इधर. 300 volt, 50 hertz, 50 hertz. Synchronoscope रुक गया. है ना? Phase sequence मैच हो गया, तो ये this is synchronization. So this is how you can synchronize one generator with another generator. ये zoom हो गया क्या थोड़ा सा? You can see voltage match, frequency match, phase sequence भी मैच हो गया एंड synchronize हो गया. अभी देखो मैं अनसिंक्रोनाइज पैरेलल से हटा रहा हूँ, ये पैरेलल से हट गया. ये देखो रेड आ रहा मींस फेज सीक्वेंस मैच नहीं हुआ. देखो ये दिस इज रोटेटिंग. फेज सीक्वेंस मैच जैसे होगा उसी समय में मुझे ये चलाना पड़ेगा. व्हेन दिस पॉइंटर कम्स एट दिस मोमेंट आई कैन सिंक्रोनाइज. देखो सिंक्रोनाइज कर रहा हूं भाई. देखो जैसे मैच होगा वैसे सिंक्रोनाइज करो. जैसे मैच हो देखो नहीं हो रहा मैच. देखिए ये फास्ट चल रहा है, एक जनरेटर फास्ट चल रहा है, इससे फास्ट चल रहा है तो मैच नहीं हो रहा. तो मुझे पहले फास्ट शुरू हो गया. ओके जैसे ही इस पॉइंट में आएगा वैसे हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा. यहाँ पे इस पॉइंट में ये देखो अब ये सिंक्रोनाइज हो गया. इस पॉइंट में सिंक्रोनाइज. तो दिस इज सिंक्रोनाइजेशन यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप. ठीक है. सेकंड मेथड इज लैम्प मेथड. सेकंड मेथड इज लैम्प मेथड. तो अब हम फिर से हटा दिया मैंने, ऑफ कर दिया. अब लैम्प मेथड से मैं सिंक्रोनाइज करूंगा. जस्ट चेक लैम्प मेथड से. तो देखो लैम्प ऑन कर. सिंक्रोनाइज कब करेंगे हम? 2 ब्राइट एंड 1 डार्क. देखो 2 ब्राइट हो गए, 1 डार्क हो गया, तो आप सिंक्रोनाइज कर सकते. दिस मेथड इज 2 ब्राइट एंड 1 डार्क. लेकिन 2 ब्राइट है तो नहीं होगा. 3 सेट है. देयर आर 3 सेट. 2 सेट जब डार्क ब्राइट रहेंगे तब हम सिंक्रोनाइज करेंगे. लैम्प दिख रहे हैं सबको?
2 ब्राइट एंड 1 डार्क, तो 2 ब्राइट होंगे एक डार्क होगा तब हम सिंक्रोनाइज करेंगे। देखो चेक करना पड़ेगा अभी आपको, लैम्प को देखना पड़ेगा, 2 ब्राइट और एक डार्क होना चाहिए। ये देखो अभी 2 ब्राइट, ये देखो 2 ब्राइट हुआ एक डार्क होगा तभी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ये देखो अभी आया, जस्ट चेक, 2 ब्राइट एक डार्क हो गया सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज हो गया तो ये रुक गया, 2 ब्राइट एंड 1 डार्क। So this is LAMP method. I hope so everybody understood. बंद कर। I hope so everybody understood that कि आप लोग जब लैब में आएंगे तो मैं फिर से एक बार आपको करवा दूंगा। तो ओनली थिंग इज कि हमारे पास एक पैनल है, हमने क्या किया वो वर्ड दैट इज आई एम समराइजिंग। वी हैव वन पैनल, एक डीसी मोटर सिंक्रोनस जनरेटर सेट है, सेकेंड डीसी मोटर सिंक्रोनस जनरेटर सेट है। हम वन सेट को सिंक्रोनस जनरेटर सेट और डीसी मोटर सिंक्रोनस जनरेटर सेट को हम ऑन करते हैं, सेकेंड सेट को ऑन करते हैं, दोनों को एक पैनल में कनेक्ट कर देते हैं। इसका वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर 1 एंड वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर 2 दोनों को हम देखते हैं, ठीक है, दोनों मैच हो गया। and I fixed at 300 volt. Generator 1 300 volt, generator 2 300 volt. Generator 1 1500 RPM दे रहा है, हमारे पास इंडिकेटर है, वहां भी 1500 RPM दे रहा है। बीच का जो पैनल है वो 50 हर्ट्ज दिखा रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी तो देयर इज ए शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो, आपका आवाज आएगी और वो फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल में कंटेंट। फिर थर्ड कंडीशन होता है कि फेज सीक्वेंस मैच करना। मैंने दिस इज आई एम टेकिंग थर्ड क्लास। फेज सीक्वेंस मैच करने के लिए क्या, आर फेज से मिलना चाहिए, वाई फेज से मिलना चाहिए, बी फेज से मिलना चाहिए। अगर फेज सीक्वेंस तो मैच हो रहा था लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले आ रहा था, तो डिले वो धीरे धीरे जब पास आता है तो सिंक्रोनोस्कोप जो इंडिकेटर है वो बीच में जैसे रुक जाता है, व्हेन नाइदर स्लो नाइदर फास्ट जैसे बीच में आता है, उसी मोमेंट में हम सिंक्रोनाइजेशन स्विच को ऑन। बट इन केस ऑफ लैम्प मेथड, 2 ब्राइट 1 डार्क लैम्प मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, एट अ टाइम 2 ब्राइट रहना चाहिए। द मेथड विच हियर आई एम यूजिंग इज 2 ब्राइट 1 डार्क। तो ऐसे लैम्प कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ चल रहे हैं, तो आपको एक इंस्टेंट देखना पड़ेगा, 2 ब्राइट और 1 डार्क है, उस मोमेंट में आप सीधा स्विच को ऑन, ठीक है। ये दिस इज वेरी बिग सेटअप, एक जन अभी कर नहीं सकता, इसमें कनेक्शंस भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको फिर से एक बार डेमो दिखाऊंगा कि हाउ द 2 जनरेटर्स आर सिंक्रोनाइज्ड। तो अभी हमने क्या किया था कि वन जनरेटर को दूसरे जनरेटर से कनेक्ट किया था। सेम थिंग हम इस जनरेटर को आपकी MACB सप्लाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्यूरीज तो दे कैन आस्क, ठीक है। तो सिंपल सेटअप है, आप अगर जब आओगे तो मैं और अच्छे से डेमो दे पाऊंगा। If you are having any doubts and queries, you can ask. CRO में आपको AC सप्लाई दिख रही थी कि हमारा जो जनरेट हो रहा है AC वोल्टेज वो साइनोसोडियल है एंड इट इज अ 3 फेज चैनल। Anybody having any doubt or queries तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने 2 मेथड्स से प्रैक्टिकली 2 alternators we have connected in parallel by using 2 methods. One is synchronoscope method. Synchronoscope method is very easy because उसमें already panel हमारे पास already है। और एक लैम्प मेथड है, तो लैम्प मेथड में जब जिस इंस्टेंट में दोनों ब्राइट लैम्प होंगे उसी टाइम में हमें, ठीक है। अगर इस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा प्रॉपरली तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, आपका रोटर ऑसिलेट करेगा, आपको थोड़ी सी आवाज भी आएगी। एक बार सिंक्रोनाइज हो गया दोनों जनरेटर, वंस both the alternators are synchronized, then they are always synchronized. किसी की स्पीड वगैरह चेंज होती नहीं है। अगर स्पीड वगैरह चेंज होती है तो वो खुद ही इम्बैलेंस कर लेता है, बैलेंसिंग कर लेता है। फेज सीक्वेंस विल नॉट चेंज, स्पीड विल नॉट चेंज, वोल्टेज विल नॉट चेंज, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड। अगर 400 वोल्ट 300 वोल्ट आप इधर ले रहे हो, उधर 300 वोल्ट 301 वोल्ट 2 वोल्ट भी रहा, लेकिन वंस इट इज सिंक्रोनाइज्ड तो दोनों 300 वोल्ट। Only 3 conditions necessary and sufficient condition for synchronization is voltage of incoming generator is same as voltage of other generator connected in parallel. Second case, frequency of incoming generator is same as frequency of generator which is to be connected in parallel. Third, phase sequence is changed.
all these three conditions are satisfied, then directly you can switch on the supply, or you can directly switch on the synchronizing switch and your generator is connected. If anybody having any doubt, any queries, they can ask the question. Time is for your questions. अगर आपको कोई doubt नहीं है तो here I can stop here. Next class will be in your regular schedule. Okay. Anybody having any questions? No question. Next time हम देखते हैं, ठीक है? Shall I stop here? Okay, have a very happy weekend for all of you.